Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're doing well. I'm back again with another class of social studies, and today we'll be reading and I'll be doing the explanation of lesson 16, that is population and census. So let's get to the chapter. Let's start with the reading and then I'll be doing the explanation simultaneously. Okay. Tahir was reading a newspaper and found that an estimated population of Pakistan is about 170 million. The word population was new for him, so he asked his grandfather, Dadaji, what does this word population mean? My son, population is the sum of all the people living in a particular area, city, or a country, explained his grandfather. How does this newspaper know that 170 million people are living in Pakistan? Asked Tahir. Interesting question, said the grandfather. The newspaper got this information from the population census organization, which is responsible for finding out the number of people living in the country. They do so by having a census of the population. What is a census? Said Tahir. Grandfather gave him lots of information about census. Let's see what Tahir has learned. The census is a count of the number of people in the country. A census is conducted to find out things such as how many people live, the number of males and females in the population, children and old people. Census records things to know about the ways of living by the people and how many people have jobs or their means of earning. How is it done? Census workers are responsible for collecting information by visiting from door to door. A census is usually held in two phases: house listing, population, and housing census. The house listing is carried out a few months before the main census. The forms and the information that are collected all over the country are checked and counted. Graphs and diagrams are then made to show the results. For example, according to the census of 1998, population of 5 major cities of Pakistan is present in this. Okay. It is the major cities, and this is the pie chart. Okay, let's get to the explanation, beta. In this chapter, beta, ये दो लोगों की कन्वर्सेशन आपको शो की हुई है, ताहिर एंड हिज दादाजी. ठीक है, ताहिर अपने दादाजी से क्वेश्चन करते हैं. ताहिर वैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि पाकिस्तान की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 170 मिलियन है. तो अब ताहिर को कन्फ्यूजन हुई कि ये कैसे पता चला न्यूज़पेपर वालों को. तो वो अपने दादाजी से क्वेश्चन करता है कि दादाजी, सबसे पहले तो ताहिर को यही नहीं पता था कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है. तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है. तो दादाजी ने कहा कि माय सन, जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल किसी भी एरिया में, शहर में या कंट्री में रहते हैं, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है. तो ताहिर ने कहा, दादाजी ये अब अखबार वालों को कैसे पता है कि पाकिस्तान में 170 मिलियन लोग जो हैं वो रहते हैं. तो दादाजी ने कहा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा. उन्होंने ये कहा कि न्यूज़पेपर को ये इन्फॉर्मेशन जो है पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन से पता चला. ये बेटा पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ये फाइंड आउट करें कि पाकिस्तान में अभी मौजूदा टाइम पे कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं. ठीक है. और फिर ताहिर ने पूछा कि व्हाट इज़ अ सेंसस. तो दादाबू ने कहा कि सेंसस हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है. तो अब हमें इस कन्वर्सेशन से पता चलेगा बेसिकली कि सेंसस जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो है इस्तेमाल की जाती है. तो बेसिकली बेटा सेंसस जो है वो मतलब बेसिकली द काउंट ऑफ पीपल, यानी एक मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं मौजूदा टाइम पे, ये उस काउंट को सेंसस कहा जाता है, या उस गिनती को जो है वो सेंसस कहा जाता है. और सेंसस जो है वो उसको कैरी आउट क्यों किया जाता है? उसको इसलिए कैरी आउट किया जाता है ताकि पता चले कि किसी भी मुल्क की, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में अभी मौजूदा टाइम पे इस दौर में कितने लोग मौजूद हैं, उनमें से कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं. ठीक है. और फिर इस इन्फॉर्मेशन को, और इसके अलावा ये भी देखा जाता है, लोगों से ये भी पूछा जाता है कि आप क्या जॉब करते हो. ठीक है. और आपके मतलब अर्निंग का जो ज़रिया है वो क्या है.
और सेंसस लोग जो हैं वो इन जो वर्कर्स होते हैं, सेंसस वर्कर्स होते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को जाके दरवाजे दरवाजे पे जाके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और अब सेंसस जो है बेसिकली होता किस तरीके से, इसके दो फेजेस हैं, यानी इसके मतलब दो सेशंस में ये किया जाता है। एक है कि हाउसिंग बाय हाउस लिस्टिंग, फिर पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस। पहले क्या किया जाता है, पहले जितने भी घर हैं बेटा उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि फ़लाँ मोहल्ले में इतने घर हैं, फ़लाँ मोहल्ले में इतने। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं हरिपुर के किसी मोहल्ले की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोहल्ला कदीम है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स टेक दैट, तो फिर वो उसमें जाके उस मोहल्ले में काउंट करेंगे कि बेसिकली लाइन में कितने घर मौजूद हैं, ठीक है, और वो घरों के ऑनर्स जो हैं वो कौन हैं, ठीक है। पहले तो इस चीज़ की लिस्ट बनती है, फिर उसके बाद जो है जब घरों की लिस्ट तैयार हो जाती है, फिर सेकेंड जो उसका फेज़ होता है, या जो सेकेंड उसका वो जो हाफ होता है, उसमें जो है उन घरों के अंदर जाके फिर ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। और इस घर के जो मेल्स हैं वो आया काम करते हैं, नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस इंफॉर्मेशन को जो है बेटा उसको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और ग्राफ शो किया जाता है कि आपके मुल्क की अभी इस साल में हमने जो सेंसस किया उसमें पॉपुलेशन ये निकली है, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पर देख लो, ये जो डायग्राम है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। पाई चार्ट में अब ये जो सेंसस हुआ था ये बेसिकली 1998 का सेंसस है। 1998 में ये सेंसस हुआ था। तो जो हमारी मेजर सिटीज़ थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ये हुआ कि हमें ये पता चला कि कराची की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे लाहौर, फिर थर्ड नंबर पे पेशावर, थर्ड पे क्वेटा, और फर्स्ट पे कराची, सेकंड पे लाहौर, थर्ड पे पेशावर, फोर्थ पे क्वेटा, फिफ्थ पे इस्लामाबाद। यानी पॉपुलेशन वाइज ये उनकी पोजीशनिंग है कि कराची की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर सेकंड नंबर पे लाहौर की बड़ी पॉपुलेशन है, फिर थर्ड नंबर पे पेशावर आता है, फिर फोर्थ नंबर पे क्वेटा और फिफ्थ नंबर पे इस्लामाबाद आता है, ठीक है। तो ये मतलब ये पॉपुलेशन की जो है वो लिस्टिंग हुई थी। फिर इसी को जो है पाई चार्ट में डिस्प्ले किया गया। देखें ये रेड कलर में जो है ये कराची है, देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। फिर जो ऑरेंज कलर है ये लाहौर है, ये लाइट ग्रीन कलर जो है ये पेशावर है, फिर ये जो लाइट ब्लू कलर है ये क्वेटा है, और ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये इस्लामाबाद है, ठीक है। फिर इसको पाई चार्ट में डिस्प्ले किया गया। इस पाई चार्ट पे नज़र डालते ही हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और कौन सी मेजर सिटी की सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। ओके बेटा इसकी एग्जांपल BZB में जो है आपको ये कहा जा रहा है कि इसकी एग्जांपल इस तरह से की जा रही है कि आप अपने लेवल पे आप यूँ कर सकते हो कि अपने स्कूल में मुख्तलिफ़ क्लासेस में जाओ, क्लासेस में जाके आप उसकी पॉपुलेशन चेक करो, फिर उसको ऐड अप करो और देखो कि आपके स्कूल की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो बेटा फर्स्ट कंसेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था, फिर सेकेंड 1961, थर्ड इन 1972, फोर्थ इन 1981 एंड फिफ्थ इन 1998, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बेटा सवाल ये उठता है कि सेंसस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई इज़ सेंसस इम्पॉर्टेंट। बेटा सेंसस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी है वो ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक टीचर है, ठीक है, उसकी क्लास है, उसकी क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल 22 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेड 4 पर्ल, ठीक है। आप ग्रेड 4 पर्ल की एग्जांपल लो। ग्रेड 4 पर्ल जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 22 है, ठीक है, और फोर्थ डायमंड जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 21 है, ठीक है। अब दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 43 आपकी स्ट्रेंथ बनती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, ठीक है, और मैंने जो है ना एग्जामिनेशंस में आप लोगों की जो क्लास है ना उसकी सीट्स अरेंज करवानी है, ठीक है। अब मुझसे तो ऑब्वियसली ये सवाल किया जाएगा कि आपकी टोटल फोर्थ की स्ट्रेंथ क्या है। अब मैं तो फोर्थ पर्ल की टीचर हूँ, मुझे तो आइडिया है कि फोर्थ पर्ल जो है वो 22 है। अगर मुझे फोर्थ डायमंड का नहीं पता होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है
तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि कितनी सीट्स अरेंज करनी है। तो अब सीट्स अरेंज करवाने के लिए ताकि, और फिर एक सीट्स ही तो नहीं होती, सीट्स के अलावा फिर आपके देखिए क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो उनकी वो भी काउंट होता है, वो भी हर बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। फिर एक दो एक्स्ट्रा भी होने चाहिए इन केस अगर इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, टीचर को ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा आपकी आंसर शीट्स होती हैं। अच्छा, इस तरह स्टेशनरी की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने अरेंज करनी होती हैं, और वो आप तभी अरेंज कर सकोगे जब आपको अपनी जो क्लास है उसकी टोटल स्ट्रेंथ मालूम होगी। अब मुझसे कोई पूछेगा, अगर मुझे अपनी का पता हुआ दूसरी का ना पता हो तो ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज होंगी, मैं कुछ गलत बता दूंगी, मैं कम बता दूंगी। जब बच्चे आएंगे तो किसी के पास आंसर शीट होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी की बैठने की जगह होगी, किसी की नहीं होगी, तो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो अब सिंस मुझे टोटल स्ट्रेंथ पता होगी तो फिर मैं बिल्कुल अरेंजमेंट वैसे ही करवाऊंगी जितनी मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है। तो फिर गिनना जो है ना, किसी भी चीज़ का सेंसस जो है इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम इसी बात को कंट्री के लेवल पे देखें, मुल्क के लेवल पे देखें, तो देखें हम लोगों ने गवर्नमेंट ने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। उसको जब पता चल जाए कि उनकी मतलब कंट्री में कितने यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो जॉब्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने मतलब वो इतनी जॉब्स जो है वो रिलीज़ करते हैं कि जितनी उनकी यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब पे लग जाएं। उसके अलावा अपने लोगों की स्ट्रेंथ के मुताबिक वो हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर थोड़े हों और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हों, तो जो चलो जितने बच्चे थे, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे बच्चे उसमें आ जाएंगे, जो रह जाएंगे वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ से आपको पता चलेगा कि आपको मतलब छोटे बच्चे जो होंगे उनकी स्ट्रेंथ से आपको पता चल जाएगा कि इन्फेंट्स की, कि आपको अपने मुल्क में कितनी मॉन्टेसरीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, जो थोड़े से बड़े बच्चे होंगे उनका आपको पता चलेगा कि प्राइमरी स्कूल्स की कितनी ज़रूरत है। फिर उससे जो बड़े बच्चे होंगे हमें पता चल जाएगा कि हायर लेवल की कितनी ज़रूरत है। उनसे थोड़े से बड़े बच्चों का हमें पता चलेगा कितने कॉलेजेस की ज़रूरत है। और जो फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल्स के, हमें पता चलता है कि हमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए कि उसमें सारी हमारी जो ये यंगस्टर्स हैं ये अपने मर्ज़ी के डिपार्टमेंट्स में अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड करनी होती है। उसने एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं, उसने स्कूल्स प्रोवाइड करने होते हैं, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हॉस्पिटल्स हैं उस हिसाब से उसने बनानी होती हैं। तो ये सब चीज़ें फिर उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है उन्होंने अपॉइंट करने होते हैं। तो डॉक्टर्स, अब जाहिर बात है पेशेंट ज़्यादा होंगे तो डॉक्टर्स भी ज़्यादा अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट के लिए सेंसस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए और आवाम को बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए सेंसस का होना या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। The census helping, the data from a census tell us about the growth of the population and help us in finding the rate of this growth. ठीक है, Karachi is the most populous city of Pakistan. Let's see what was the population in 1981 and 1998. तो बेटा कराची जो है, हम पहले भी पिछले डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था, पाई चार्ट में भी देखा कि कराची की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 1981 में यह कराची की पॉपुलेशन थी एंड देन इन 1998 ये कराची की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी भी बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि पहली वाली में 54,37,984 थे। ठीक है, और फिर 1998 में कराची का क्या हुआ, 98,56,318 हो गई इसकी स्ट्रेंथ कराची की। ठीक है, तो अब देखें कितनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन अचानक से जंप करके जो है ना तकरीबन डबल हो गई, तकरीबन। ठीक है, तो डबल से थोड़ा सा कम है। तो वो बेसिकली देखें वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है बेटा, उसकी दो मेन रीजंस होती हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन रीजंस ऑफ दिस ग्रोथ। देयर कुड बी वन, द बर्थ ऑफ न्यू चिल्ड्रन, नंबर टू माइग्रेशन। दो मेजर रीजंस ये, या तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उस मतलब कंट्री में, तो अनकंट्रोल्ड, तो उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा जो है वो माइग्रेशन, यानी कि
बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग गांव से, देहात से या मुख्तलिफ शहरों से उठ के बड़े शहरों में चले जाते हैं ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों, बेटर काम हो, बेटर फ्यूचर हो उनके बच्चों का। तो इसलिए वो जब माइग्रेशन करके तो फिर गांव के इलाके क्या होता है, खाली हो जाते हैं, और जो शहर होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन डबल होती जाती है। ठीक है, अब माइग्रेशंस की क्या रीज़न है? People migrate for several reasons. Some people migrate to study in big cities, others go in search of jobs and opportunities, while some travel to settle and become a part of the पॉपुलेशन। वही रीजंस जो मैंने आपको बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए, कुछ चाहते हैं क्योंकि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, कुछ चाहते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो। इन्हीं वजहों के बिना पे लोग जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ चंद क्वेश्चंस बेटा। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इट इज़ कराची। हमने पीछे वाले चार्ट में भी देखा था, पाई चार्ट में भी और टेबल में भी देखा था। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन? तो प्रोविंस यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है, लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है। वाई डू यू थिंक सम एरियाज आर मोर क्राउडेड देन अदर एरियाज? उसका रीज़न भी बेटा मैंने आपको बता दिया है कि कराची चूँकि सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती है, तो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक कि गरीब तबका कराची में बहुत ज़्यादा जाता है। उसकी सबसे मेन रीज़न है कि कराची में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूरियाँ या जिसे आप कह सकते हैं लेबर वर्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसलिए लोग जो हैं गाँव से उठ के फिर शहरों में चले जाते हैं, कराची वगैरह के जैसे शहरों में, लाहौर जैसे शहरों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ज़्यादा काम होता है। तो और फिर इस तरह से वो अपने बच्चों को भी बाज़ औक़ात ले जाते हैं कि वहाँ स्कूल्स भी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर वहाँ पर उनको अवेलेबल होता है। इसलिए लोग जो हैं वो छोटे शहरों से उठ के बड़े शहरों में जाते हैं। ठीक है, Census not only helps the government and public service organizations, but it also gives us detailed information about our towns, cities, provinces and the country. तो सेंसस जो है सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती अबाउट, बल्कि मतलब सिर्फ पॉपुलेशन का नंबर ही हमें नहीं बताती, बल्कि वो हमें ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है कि फ़लाँ, अब जैसे कि हम सिर्फ कंट्री के लेवल पे सेंसस को नहीं देखते, हम सेंसस को हम शहर के लेवल से भी देखते हैं। कि ज़ाहिर पता है हर शहर में, हर कस्बे में सेंसस हो रहा होता है, तो हमें ये भी पता चलता है कि फ़लाँ गांव में कितने लोग हैं, फ़लाँ शहर में कितने लोग हैं, फ़लाँ मोहल्ले में कितने लोग हैं। तो हमें बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हमें पता चल जाती है। यहाँ तक हमें ये भी पता चलता है कि बाद सिटीज़ में कुछ मोहल्ले ज़्यादा क्राउडेड हैं और कुछ कम क्राउडेड हैं। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी जो है वो गवर्नमेंट को मिलती हैं। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन it is our duty to cooperate with census workers and provide them correct information whenever they visit our homes for collection of information. तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारा क्या काम बनता है? हम लोगों का ये काम बनता है बेटा कि जो जब सेंसस वाले हमारे दरवाजे पे आएँ तो हम उनको एक तो बहुत अच्छी तरह मिलें, बहुत रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। सेकेंडली हमें चाहिए कि हम उनको बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो हमारे लिए बेटर प्लानिंग्स कर सकें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाती है और गवर्नमेंट हमारे लिए फ्यूचर प्लान्स बनाती है और उस हिसाब से आवाम के लिए प्लानिंग की जाती है कि कितना आवाम को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे उनको ये तमाम चीज़ें फराहम की जाएँ। ठीक है, ओके बेटा, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। I hope you will be doing good and you will be reread this chapter, and if there is any question, ask me in the comment section. I'll get back to you, and now I'll also be posting the fill in the blanks question and answers of this chapter. So I want you people कि आप लोग question and answers को copy में करें और blanks और बाकी जो exercises हैं उनको book पे ही solve कर दें। ठीक है, have a nice day and enjoy your vacations. Allah Hafiz.